Friends, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn chapter number 1.6, The Alchemy of Nature from Maharashtra State Board. Before we begin with the chapter, I want to request all my viewers to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Again, a warm welcome to all my friends. Let's start our today's chapter. And the title of this chapter is The Alchemy of Nature. Now, first let's see the title Alchemy. What is mean by alchemy? Do you know, friends? Okay, I'll tell you. Alchemy it means magic. Okay, magic. That is one with which I can say कि iron turns into gold. If you touch the alchemy to the iron, then it will turn into gold. So the alchemy of nature, and this article is written by, see the lady, who is she? Raksha Bharadia. Raksha Bharadia. She is the well-known writer, okay, of our Indian literature. So let's begin with our topic, alchemy of nature. लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले let peep into the nature. What nature does for us? ये नेचर करता क्या है बताओ? हाँ? What nature does for us? We know that nature has many magical effects on us. Now, how these magics perform on human being, that is given here through this lesson. Okay. Before we turn to the part, let's see what different things that nature does for us. See the first thing. The first thing the nature does for us, it motivates us, it inspires us, है ना? ये क्या करता है बेटा? हमको मोटिवेट करता है, हमको ये इंस्पायर करता है टू डू द थिंग्स. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट द नेचर इज डूइंग. द नेचर नेक्स्ट इज नेचर soothes us. Soothes us means it relaxes us, it calms us. Whenever we are in tension, we are upset. If, say for example, if I am upset, then definitely I will go to outside. So we immediately turn to outdoor activities, and we instantly turn in the close company with the nature. So in this way nature soothes us. The next one is nature fulfills us, है ना? नेचर फुलफिल करता है. वी नो दैट वेन एवर वी आर यूजिंग ऑल दिस थिंग्स ना, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, है ना, एन्जॉयमेंट लेते हैं, दिस हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय द मदर नेचर. दैट्स वाई हियर इट फुलफिल्स अस. द नेक्स्ट इज इट इज टेकिंग केयर ऑफ अस. नेचर इज taking care of us. Human beings are doing their progress only because of the nature. Hence, nature nurtures us. ठीक है? नर्चर क्या नर्चर करता है हमको नेचर. नेक्स्ट इज इट कमांड्स अस. फ्रेंड्स, whenever we do harm to our nature na, it commands us. It takes control of the human beings, and that is why you must have heard about the news like COVID-19, है ना, global warming and its impact on nature. This is because nature commands us. Remember, nature is superior than us, so it commands us. Okay, it cares us, but on the other hand it commands us also, it controls us also. Next is it pampers. Pampers means it cares us. Whatever thing we require to care ourselves,
to pamper ourselves? We get from our nature. So nature pampers us. Beta, one more thing is that is, I can say that nature teaches us. Nature teaches many things to us. What it teaches us, that is what given in this lesson. है ना, ये नेचर हमें क्या सिखाता है वो ये लेसन में मैंने दिया है. ठीक है. सो इन दिस वीडियो what it teaches us, that is what given here in this lesson. In each paragraph of this lesson you will understand that what nature teaches us, है ना. and एक और है, can you say what nature does to us? सोचो. And the thing is very simple. Nature whispers. Nature whispers. Whispers means what? Whispers means it tells us. It tells us. It tries to communicate with us. But that we need to be very, for this, we need to be very attentive. We need to be in a very close proximity with the nature. If we are in a very close proximity, only then we understand that nature is ready to convey its message to us. So friends, last one, भले इधर question mark दिया है, but you have to remember that I want to whisper with you. That means I want to convey my message with you. In the same way, what nature does to us. Okay. So friends, before beginning with the topic, here is one quote given by a very famous, you can say, British writer whose name is William Black. ये विलियम ब्लैक के कुछ लाइन्स हैं, and the line is very simple. To see a world in a grain of sand, to see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So beta, what the William Black is going to convey the message to us, it's very simple. What he wants to say, friends, that something as tiny as a grain of sand, something as tiny as a grain of sand can spark of an idea or imagination of a huge significance to the world. Once you understand this, you can really be happy with this lines given by William Black, that one can witness and experience the beauty of heaven in something as small as a wildflower and derive the joy from it forever. Only one could have the eyes and time to see it. The two things required for enjoying the beauty of the nature is you require the vision, as well as you must have the time with you to see the beauty of the nature. What William Blake wants to convey us, that if you want to see a world in a grain of sand, एक छोटे से कण में भी आपको ब्यूटी देखना है और एक चीज देखना है, and a heaven in a wild flower, एक वाइल्ड फ्लावर में आपको स्वर्ग देखना है. होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड. सो बेटा उसको आप अपनी मुट्ठी में बंद करो. एंड एटर्निटी and unending time in an hour. So you require the vision as well as the time. So third line, hold infinity in the palm of your hand. That means you require the vision to see the magic of the nature. And second one, you must have the, you can say, time to see the nature's beauty. Infinity is endless, bacha. Infinity is endless, but your small palm can hold the destiny of the earth through your efforts. बेटा ये जो समय है, या ये समझ लो ये जो नेचर है, is its you can say borders are endless. इसकी सीमाएं, इसकी सरहदें एकदम endless है, infinity है. But you can hold it. You can hold the beauty of the nature
है ना, थ्रू योर एफर्ट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रयत्न होना चाहिए, ठीक है। एटर्निटी, एटर्निटी मतलब एवर लास्टिंगनेस। एटर्निटी मीन्स एवर लास्टिंगनेस, यानी शाश्वतता। इज़ एंडलेस टाइम। बेटा समय जो है, टाइम जो है ना, वो शाश्वत है। यू कैन नॉट रन विद द टाइम, यू कैन नॉट होल्ड द टाइम। आप समय को रुका नहीं सकते हो। द टाइम इज एवर लास्टिंग, एटर्निटी इज एंडलेस टाइम। बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ, आपके जीवन का सिर्फ 1 घंटा कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। तो वो पूरा वर्ल्ड आपका बदल सकता है, आपकी दुनिया, आपका जीवन बदल सकता है ना। ऑलवेज याद रखो बेटा, ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। अच्छी जो बातें होती है ना, वो जो ग्रेट डीड्स होता है, कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम, वो समय से भी आगे निकल जाता है, एंड स्पेस से भी। दे नेवर डाई, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। नाउ लेट्स बिगिन व्हाट रक्षा भराड़िया वांट्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ द नेचर। बेटा हम लोग बहुत बार थक जाते हैं ना, ये रूटीन लाइफ से, ये रूटीन लाइफ से हम लोग बहुत थक जाते हैं। और जब थकान होती है ना, तो फिर हम नेचर के पास दौड़ जाते हैं। हम दौड़ते हैं नेचर के पास कि भाई हमें थोड़ा एन्जॉयमेंट दे दो, हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट दे दो। सो व्हाट द मैसेज इज़, इट्स वेरी सिंपल। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. What we do normally, जब भी हम थक जाते हैं, we instinctively turn to outdoor activities. तो हम instinctively, that means you can say by a natural instinct, एक इमीजिएटली, इंस्टिंक्टली मतलब इमीजिएटली। सो इमीजिएटली हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। एटलीस्ट 2-3 दिन से हम लोग थक गए, घर के बाहर नहीं निकले, तो चलो एक राउंड मार के आते हैं बाहर। ये जो बेटा राउंड मारने को जाने का, घूमने को जाने का, बिल्डिंग के नीचे एक चक्कर मार के आते हैं, बेटा ये चक्कर मारना नहीं होता है। हम लोग नेचर की गोद में जाते हैं, हम लोग नेचर के पास जाते हैं, है ना, नेचर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। सो वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर इज़ अ वे ऑफ रिलैक्सिंग। दिस इज़ अवर नेचर, दिस इज़ अवर ह्यूमन नेचर टू रिलैक्स अवर सेल्स एंड एनहेंसिंग अवर वेलबींग। वेलबींग बोलेंगे तो अवर हेल्थ, अवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इट एनहेंस दैट मीन्स एनरिचेस। सो नेचर को ऐसे, नेचर के पास दौड़ना, कुदरत के पास दौड़ना, और कुदरत की गोद में जाके हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी हेल्थ, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को हम लोग बढ़ा देते हैं। बेटा नेचर जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है। नेचर सूथेस, नेचर नर्चर्स। नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल सूथेस दैट मीन्स इट काम्स अस, रिलैक्सेशन यू कैन से, ये हमें रिलैक्स कर देता है, ये न्यूरिशस करता है हमको। नेचर फुलफिल्स अस, फुलफिल्स क्या होता है बेटा, फुलफिल्स होता है दैट वी नो दैट वट एवर वी आर यूजिंग ना, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय अवर नेचर, बाय अवर मदर नेचर। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग, है ना, एप्पल है, बनाना है, सारे ग्रेन्स है, वाटर है, ये सब हमें नेचर देता है। ये जो पंच तत्व है, दैट ऑल पंच तत्व इज़ अ नेचर, ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देता है। बेटा नेचर सूथेस अस दैट मीन्स रिलैक्स अस। जब भी हम टेंशन में होते हैं, वेन एवर वी आर इन टेंशन ना, और समझो कि हम लोग अपसेट है, वी इमीजिएटली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़, वी इंस्टेंटली टर्न इन द क्लोज कंपनी विद द नेचर। ओके, सो नेचर सूथेस अस, नेचर नर्चर्स अस, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स अस। ये हमें जीने को मोटिवेट करता है ना, ये मोटिवेट करता है। एंड नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। विस्पर्स यानी हमसे बातें करता है, धीमी धीमी बातें करता है, स्लोली बातें करता है। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए what it wants to convey to us. So whispers, that means it tells us, it tries to communicate with us,
But for that, we need to be very attentive. Huh? We need to be in a very close proximity with our nature. If we are in a very close proximity with our friends, this with this nature, only then we understand what the nature whispers with us. So, what the nature is asking us, nature is asking, are you listening to me? When I do, it leaves me in complete wave. जब मैं उनको नेचर को सुनता हूँ, यहाँ पे राइटर इज रक्षा भराड़िया, तो रक्षा भराड़िया इज सेइंग व्हेन आई डू इट लिव्स मी इन कंप्लीट एव, तो ये मुझे ग्रेट वंडर, एव मीन्स ग्रेट वंडर, ग्रेट अमेजमेंट है ना, तो ये मुझे पूरे भर देती है, ये विश्व, ये जो कुदरत है, दैट नेचर, it enhance me in a complete awe. Complete you can say wonder and surprise से मुझे भर देती है. See बेटा, एक बहुत अच्छा एक प्लांट है, वीडियो में कॉर्नर में दिया है, इट्स अ हिबिस्कस प्लांट. सो व्हाट द राइटर इज सेइंग दैट वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन. ये गार्डन में मेरे पास में एक हिबिस्कस प्लांट है. एवरी फोर्टनाइट यानी आफ्टर 15 डेज है ना, हर 15 दिन में अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, एक अच्छा खासा एक ये फ्लावर उसके ऊपर आ जाता है, हिबिस्कस का एक अच्छा खासा फूल उसमें आता है. एंड इट इज़ वेरी बिग, ब्राइट एंड टेंडर. ये जो हिबिस्कस है, ये हिबिस्कस जो है जासवंत का जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फ्लावर एक बड़ा सा फूल खिलता है, ब्राइट होता है, एज वेल एज टेंडर भी होता है. थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांस विद द विंड. ये पूरा दिन सूरज के साथ में, हवा के साथ में खिलता रहता है. बट एज इवनिंग अप्रोचेस ना, इट स्टार्ट्स विल्टिंग. विल्टिंग दैट मीन्स ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग. तो ये सूखना चालू होता है. पूरा दिन बेटा इट यू कैन से स्माइल्स विद द सन. ये सूरज के सामने हंसता है, मुस्कुराता रहता है, प्लस ये डांस करता है विंड के साथ में. बट एज द इवनिंग अप्रोचेस ना, इट स्टार्ट्स विल्टिंग. द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स. जैसे ही सुबह चली जाती है, इट विदर्स दैट मीन्स इट ड्राइज एंड ड्राई. ये सूखना चालू होता है, ड्राइज एंड ड्राई completely, and by the evening it falls and becomes one with the soil again. बेटा पूरा दिन हंसने खेलने वाला शाम ढलते ही ये भी ढल जाता है, और रात होते होते ये मुरझा कर गिर जाता है ज़मीन की मिट्टी पे. The flower, the hibiscus flower comes to life only for a day. एक या 2 दिन का इसका ज़िंदगी है. Yet it does not show in full, you can say, splendor. लेकिन बेटा ये एक दिन का ज़िंदगी है, फिर भी क्या करता है बेटा, it lives its life to the fullest. पूरा मज़ा ले लेता है ज़िंदगी का. What if we too lived in our life, however short its fullest? बेटा हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में, हम क्यों नहीं सोचते हमारा जितना भी ज़िंदगी है, जितना भी लाइफ है, हिबिस्कस का तो एक ही दिन का लाइफ है, बट स्टिल वो एक दिन पूरे फुलफिल करके जीता है. सो व्हाट इफ वी टू लिव आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, है ना. सो बेटा ये हिबिस्कस प्लांट हमें एक ही बात सिखाता है, दैट मीन्स टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट. हमारा ज़िंदगी जितना भी भगवान ने दिया है वो हम लोग फुलेस्ट हैप्पीनेस से जीना चाहिए. दिस प्लांट ब्लूम्स ओनली फॉर अ डे, और एक या 2 दिन, यू कैन से 24 और 48 आवर्स का. बट इवन इन दैट लिटिल पीरियड ऑफ टाइम इट लिव्स इट्स लाइफ टू द फुलेस्ट. सो ये हिबिस्कस प्लांट की बात नेचर हमसे विस्पर्स यानी कम्युनिकेट करना चाहता है. नेक्स्ट इज बेटा, कभी कभी हम लोग है ना रॉकी बीच पे जाते हैं. सो वी वेंट टू रॉकी बीच एंड सो द स्प्रेड ऑफ द मेजेस्टिक ओशन. हम पूरा फैला हुआ समंदर देखते हैं, हम पूरा फैला हुआ समंदर वहाँ पे देखते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि हम लोग ने नहीं देखा है. एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और आसपास में हम लोग रॉक्स भी देखते हैं.
रॉक्स कैसे हैं बेटा? दैट इज कार्व्ड, स्कल्पटेड, शेप्ड, एंड these all rocks are, you can say, carved, sculpted and shaped by the water. यहाँ पे कोई आर्टिस्ट नहीं गया जाके चिजल एंड हैमर लेके कि चलो इसको रॉक को शेप कर दें. ये कौन शेप करता है? ये शेप करता है उसका ओशन वेव्स. बिकॉज वेनेवर हम लोग जब भी समंदर के किनारे जाते हैं तो हम लोग को ये दिखता है कि कैसा शेप करके लिया इसने. So we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean. First of all, we see the you can say majestic ocean. एक चमत्कारिक ओशन हम लोग देखते हैं, उसके वेव्स देखते हैं. But alongside to the ocean, we also see the rocks there. लेकिन उसके ही पास में हमें रॉक्स भी दिखते हैं. The rocks is carved, the rocks is sculpted, and the rocks is shaped by whom? By water. Water उसको आकार देता है, शेप करता है. बेटा अभी देखो ना, दोनों का टेंडेंसी देखो. वाटर इज जेंटल. वाटर कैसा है? जेंटल है, एक डेलिकेट है. वाटर इज सो जेंटल एंड ऑन द अदर हैंड रॉक इज सो हार्ड. येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे. रोज जाता है. हाँ, क्या रोज समंदर की वेव्स उस रॉक के पास जाती है. ठीक है, उसको क्या बोलती है? भाई जाने देना ज़रा आगे. लेकिन रॉक उसको जाने नहीं देता है. नो, आई विल नॉट. वापस सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इट फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर द ईयर्स, है ना. इतना साल में जाता रहता है. एट लास्ट द रॉक गिव्स इन. बाद में रॉक मान जाता है. इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स. फिर वो ऐसे रास्ता देता है जैसे समझ लो कि वाटर ने उसको कमांड किया, भाई यहाँ से जाने दे. बेटा ऐसा ही है. अगर प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें हैं लाइफ की, आर सो कोलोसल दैट मीन्स ह्यूज, मैसिव. कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ रहने दो, डर के भागना नहीं उस कठिनाइयाँ के पास में. रोज़ थोड़ा थोड़ा उसके पास जाना है. भाई हट जा. भले हम लोग टेंडर है, हम लोग डेलिकेट है, हम लोग सॉफ्ट है, हम लोग जेंटल है. वी कैन नॉट फाइट विथ अवर प्रॉब्लम्स, बट वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम अवर प्रॉब्लम्स. हम लोग को अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं है. वी आर सो स्मॉल बट येट इफ़ वी परसिस्ट ना, हम लोग उसके सामने जिद करते रहे. यहाँ पे देखो वाटर उसके साथ जिद करता है, जाने देना. द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, यू कैन से फॉर ईयर्स, सालों तक उसके पास जाता रहता है रॉक के पास में. आखिर में वो रॉक उसको रास्ता देता है. इन द सेम वे इफ़ वी हैव बीन गिवन, है ना, इफ़ वी हैव बीन, यू कैन से परसिस्ट, हम लोग परसिस्ट करेंगे ना, तो बेटा एट द एंड हमारे प्रॉब्लम्स भी झुकेंगे और हमें रास्ता दे देंगे. एंड एट लास्ट वी विल रीच अवर एम एंड डेस्टिनेशन. सो इफ़ वी परसिस्ट, इफ़ वी डू continuously with our activity na, then howsoever difficult the task is, we can easily overcome from that task. So this is what the ocean water or the waves is conveying the message to us. बेटा क्या दिखता है? एक फुटपाथ दिखता है. फुटपाथ पे एक छोटा सा प्लांट, एक ग्रास, एक बिट ऑफ ग्लास बाहर निकला हुआ दिख रहा है. वी सॉ द स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, है ना, दिख रहा है. कंक्रीट का पेवमेंट में एक स्मॉल क्रैक में से वो एक छोटा सा प्लांट, एक ग्रासी प्लांट बाहर निकलता है. बेटा समझो ना, एक ऐसा स्टोरी समझ लो यहाँ पे कि वो ग्रास का सीड रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो नीचे सॉइल में था और लोगों ने उसके ऊपर रॉक्स के और यू कैन से कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर रख दिए. मतलब इसके लाइफ में, ये प्लांट्स के लाइफ में प्रॉब्लम्स किसी ने रखा है ना. ऐसा नेचुरल नहीं है, किसी ने आके उसके लाइफ में ये डिज़ास्टर लेकर आया है बड़ा सा. सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. एक प्रॉब्लम, एक पेवमेंट का एक पत्थर नहीं रखा है ना, बहुत सारे आसपास में सब जगह पर. ये यहाँ जाता है, पत्थर निकला, वहाँ गया, पत्थर आड़े आ गया.
इट कैन नॉट रीच टू द सनलाइट, ये जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना। बट एट लास्ट यहाँ वहाँ घूमने से इट फाइंड्स अ क्रैक, उसे एक क्रैक मिल जाती है और वो क्रैक में से बाहर निकल के सनलाइट ले लेता है। सो वी सॉ द स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास peeping थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, है सोचने पे मजबूर करता है ये एग्जाम्पल। बेटा क्या सीखे हम लोग इससे? हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, है ना, बहुत सारे आसपास में इम्पॉसिबिलिटी उसको दिख रहा था, यहाँ भी रास्ता नहीं, वहाँ भी रास्ता नहीं। बेटा याद रखो, देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, है ना। भगवान सब दरवाजे, दुनिया पूरे दरवाजे बंद कर दे लेकिन भगवान एक दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ता है। दिस इज़ द मैसेज गिवन बाय दिस नेचर। सो व्हाट वी आर यू हियर लर्निंग, ये एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिला है? दैट देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। यू हैव हर्ड अबाउट दैट प्रोवर्ब ना, एक प्रोवर्ब आपने सुना है? प्रोवर्ब इज़ वेरी सिंपल, दैट एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। कितना भी बेटा घने बादल आने दो, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग मिलता ही मिलता है। एंड सेम इज़ व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम दिस स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास। एक हल्का फुल्का ग्रास का तिनका भी हमें एक बात सिखा के जाता है कि कितने भी प्रॉब्लम्स रहने दो, सब रास्ते बंद रहने दो, देयर इज़ एन ओपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, समझ में आया? बेटा बाद में एक मस्त सा एग्जाम्पल है, देखो ये लाइफ है, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। एक ही लाइफ है, देखो एक बाजू बेयर है एंड एक बाजू पूरा हरा भरा हुआ है। सो वी सो अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लिव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। जैसे ही कोल्ड विंटर मंथ्स आता है ना, ये पूरे पत्ते उसके जड़ जाते हैं, पूरे उसके पत्ते जो है गिर जाते हैं, है ना। ड्यूरिंग द विंटर सीजन ट्रीज हैड शेड ऑल इट्स लीव्स, बट व्हेन द स्प्रिंग सीजन सेट इन ना, इट अगेन कम बैक टू इट्स मैजेस्टी। लाइफ में बेटा दुख आया ना तो सब जड़ जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, बट व्हेनेवर आपकी वो प्रॉस्पेरिटी, आपका वो स्प्रिंग सीजन लाइफ का, व्हेन इट सेट इन, वो एंटर होता है आपके लाइफ में, इट बिकम्स लाइवली। एंड दैट व्हाट वी लर्न फ्रॉम द ट्रीज, दैट हाउसोएवर डिफिकल्ट इज द सिचुएशन, है ना, howsoever difficult is the situation, but think this, that it does not remain for you can say for a long or forever। बेटा जिंदगी में कितने भी दुख आने दो लेकिन it will also pass, ये सिखाता है ट्री के एग्जाम्पल से। that means we saw a tree bare, that means without any leaf, है ना, without any leaf of all the leaves in the cold winter months, we thought that its chapter was over। हमको लगता है कि यार ये तो मर गया पेड़, its chapter was over, that means dead। but after you can say 3 months spring set in, वापस उसके लाइफ में स्प्रिंग आता है, and the tree was back to its green majesty once again। you can say full of leaves, full of flowers। जो पंछी उसको छोड़ के चले गए थे ना आपने, अब देखो जिसको ये पेड़ ने शेल्टर दिया था, शेल्टर किसको दिया था? इंसेक्ट को दिया था, बर्ड्स को दिया था। ये सारे बर्ड्स, इंसेक्ट, ये जो उसको छोड़ के चले गए थे उसके दुख वाले लाइफ में, जैसे ही स्प्रिंग आया, जैसे ही उसके पत्ते हरे भरे हो गए, फ्लावर्स आने लगे, फ्रूट्स आने लगे, ये सब वापस आ गए। बेटा दुख में छोड़ के गए थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई, है ना। ये उसका लाइफ का मैजेस्टी वापस जब आएगा ना, वो ग्रीन लीव्स वापस आएंगे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वापस आएंगे, तो ऑल बर्ड्स, ऑल लाइफ, ये सब वापस से हरा भरा हो जाएगा। व्हाट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ये बिलीफ रखो लाइफ में, that however the difficult things are right now, कितने भी difficult thing अभी दिख रहे हैं, it will not remain so forever, आपके लाइफ में रहने वाला नहीं है। remember this too shall pass, ये भी चला जाएगा,
है ना। ये ट्री सिखाता है आपको, क्या सिखाता है, भले दुख आने से लोग छोड़ के चले गए लेकिन वही लोग वापस रिटर्न आएंगे आपके लाइफ में। बेटा एक हमने ये आर्मी ऑफ एंड देखा है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंड साइज। क्या समझे, एक आर्मी का एंट देखो आर्मी, देखो आर्मी ऑफ एंट्स, देखो वो एक फ्लाई को उठा के लेके जाते हैं, लगिंग ऑफ फ्लाई, एक मक्खी को उठा के लेके जाते हैं, विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंड साइज। एंड से 10 टाइम्स उसका वेट ज़्यादा है। इतनी छोटी चींटी और इतना बड़ा वो इंसेक्ट उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं, क्यों उठा सकते हैं, सोचा कभी? बेटा वो एंट अकेली नहीं उठाती, उसकी पूरी फैमिली उठाती है। तो वेनेवर आपके लाइफ में बैड टाइम आता है, आपके लाइफ में सोरोफुल डेज आते हैं ना, उस टाइम पे आपका फैमिली का यूनिटी वो प्रॉब्लम को, दो द प्रॉब्लम इज कोलोसल, दो द प्रॉब्लम इज ह्यूज मैसिव, बट यू कैन टेकल, यू कैन ओवरकम ऑफ दैट प्रॉब्लम, है ना। द एंट आर्मी, है ना, ये एंट आर्मी आपको सिखाता है। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज। द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई। बेटा एक जोक था, एक पापा और एक बेटा कुछ तो भी कपबोर्ड को निकालना चाहते थे घर से। अभी क्या हो गया, पापा एक दरवाजे में फंस गया था कपबोर्ड। बेटा है कि बाहर की ओर धक्का मार रहा है और पापा है कि अंदर की ओर धक्का मार रहा है, उसको पुश कर रहा है। कहाँ से निकलेगा वो, प्रॉब्लम फंसा हुआ है डोर में, एक इस तरफ भाग रहा है, दूसरा उस तरफ भाग रहा है, कैसे होगा? से फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन वंस लाइफ एंड जो उसके जो बच्चे, बॉय है या गर्ल है जो भी है, वो क्या करते हैं, सब जगह पैसे उड़ाते रहते हैं। माँ बाप है वो क्या करते हैं, माँ बाप वो सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जो काम मिला वो करने लगे। लेकिन बेटे हैं कि वो समझ ही नहीं रहे, लेज़ी हो गए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे होगा उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन? सो बेटा एंट आर्मी आपको यहाँ पे सिखा रहा है कि इफ़ यू वांट टू टेकल द प्रॉब्लम ना, बी ऑर्गेनाइज्ड। तो पहले संगठित हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई। फिर सब लोग सोच लेते हैं क्या करना है, फिर वो उठा लेते हैं। दे लिफ्टेड इट ऑन देयर फ्रेल फीलर्स। फ्रेल फीलर्स दैट मीन्स वीक लेग्स, उनके पैर बड़े कमज़ोर है, फीलर्स दैट मीन्स वीक लेग्स है उनके। एंड कैरिड इट टू अ क्वाइट डिस्टेंस। अच्छा खासा सब लोग उठा के एक डिस्टेंस तक, जहाँ तक उनको जाना है वो जा सकते हैं। हियर देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस दैट मीन्स यू कैन से कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। परसिवरेंस, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। कितने भी मुश्किलें आती है फिर भी बेटा वो उठा के लेके चलते हैं, लगिंग करके चलते हैं फ्लाई को। वॉट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट? वी शुड ऑल्सो डू इन सेम वे कंटिन्यूसली। कंसिस्टेंट दैट मीन्स स्टेडी। आपको वो हेयर एंड द टॉर्टोइज का एग्जाम्पल भी मालूम है। हेयर एंड द टॉर्टोइज में क्या एग्जाम्पल था कि हेयर एंड टॉर्टोइज में कंपटीशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, हेयर सो जाता है और वो जो टॉर्टोइज था दैट वाज स्टेडी, वो चलते रहता है एंड एट लास्ट इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन। बेटा अभी के दौर में फैमिली में ऐसा नहीं चलेगा। अभी के दौर में समझो घर का कोई मेंबर लेज़ी है तो बाकी ने उसको उठा के साथ में दौड़ाना है। अभी ऐसा नहीं कि टॉर्टोइज आगे निकल जाएगा, उसको हेयर को उठाना पड़ेगा, भाई उठ दौड़ मेरे साथ में। सो वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज. The ants organized themselves around the fly, okay, and they lifted it on their frail feelers, and it carried to a quite distance. Their teamwork and their perseverance that means constant effort, उनके प्रयत्न, they were really having an impressive work. So really their perseverance were impressive. What if we too are consistent बच्चा? Consistent that means steady, organized, focused. ये 3-4 चीज़ें हमें याद रखनी है। वी शुड बी स्टेडी, वी शुड डू ऑल द थिंग्स कंटिन्यूअसली, वी शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ सेंस देयर मस्ट बी यूनिटी इन अवर फैमिली,
एंड वी शुड फोकस, भाई हमें कहाँ पे लेके जाना है, वो कबर्ड को घर के बाहर निकालना है या अंदर रखना है, क्या करना है, वी शुड बी फोकस. तो इन दिस वे वी कैन tackle our problem. So what this army of ant is teaching us? The army of ant हमें सिखाती है बेटा, क्या सिखाती है, that आपको आपके प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, एंड कंटिन्यूअस एफर्ट इज़ द बेस्ट टॉनिक टू टेकल द प्रॉब्लम. बेटा बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे एग्जांपल है. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट. ये जो स्पाइडर वेब्स है ना, डेलिकेट होती है, लेकिन कितनी बड़ी मक्खी को फंसा लेती है ना. येट वेरी स्ट्रॉन्ग. दो यू आर बेटा, दो यू आर डेलिकेट, और इन वन सेंस आई कैन से हाउ एवर डेलिकेट यू आर, बट याद रखो बेटा, आपका करेज वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यू आर स्ट्रॉन्ग विद इन. हाउ एवर डेलिकेट यू आर स्ट्रॉन्ग विद इन. आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा. बेटा ये जो मकड़ी होती है ना, वो जब जाल बनाती है कितनी बार नीचे गिरती है, कितनी बार नीचे गिरती है. ही इज़ कंसिस्टेंट. वो बार बार उठ के वापस अपनी जाल बनाती है और किसी भी इंसेक्ट को फंसा लेती है. अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. इसका मतलब होता है बेटा, जब सुख आता है ना, वो आप सुख सब में बांट दो. ये क्या करता है, इट कम्स वेरी ओकेजनली रेनबो, बट इवन ड्यूरिंग दैट लिमिटेड टाइम पीरियड दे आर डूइंग द वर्क ऑफ ब्यूटिफाइंग द स्काई. समझ में आ रहा है, वो पूरा स्काई को ब्यूटीफाई करके जाता है. भले कम आता है, ऐसा रेगुलर हर एक 4 महीने में हर डे आपको ये रेनबो नहीं दिखता है. इट कम्स वेरी ओकेजनली, बट इवन ड्यूरिंग दैट लिमिटेड टाइम दे आर डूइंग द वर्क ऑफ ब्यूटीफाइंग द स्काई. सो बेटा ज़िंदगी को ब्यूटीफाई करने का कोशिश करो, है ना. और बेटा ऐसे ही रेनबो नहीं होता है. एक अच्छा खासा एक आपको एग्जांपल बताता हूँ. वेन एवर देयर इज़ एन ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ ना, इट विल क्रिएट द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ. याद रखो बेटा, एक पानी का झरना बहता है, रास्ते में पत्थर आया तो उसमें से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आना चालू होता है झरने में से. और एक एग्जांपल है कि समझो कि मैंने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई, राम करके आवाज़ लगाई, और ये कोई एक बंदे को आवाज़ लगाई मैंने, और मेरे साउंड का वेव्स में बीच में एक माउंटेन आ रहा है, तो इट विल क्रिएट द एको ऑफ माई साउंड. ऑब्स्टिकल आया ना, तो इट विल क्रिएट द ब्यूटी. एक सन रे ऊपर से आ रहा था, रास्ते में एक बादल आ गया, नहीं पहुंचने दिया अर्थ के पास, तो बेटा वो रेनबो कैसे बना मालूम है ना. वो बादल जो था ना, उसमें से जैसे ही पास ऑन हुआ सन रे, तो वो एक 7 कलर्स में टर्न हो गया. तो याद रखो, जब भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आता है, तो वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ की ब्यूटी को और अच्छे से सजा देता है. सो रेनबो सिखाता है बेटा, ये इट कम्स वेरी ओकेजनली इन अवर स्काई, बट वेन एवर इट कम्स ना, इट ब्यूटीफाई द स्काई. वो ज़िंदगी को ब्यूटीफाई करता है. और एक बात है बेटा, आपने देखा रहेगा ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड. वो एक छोटा सा रेती का कण ले लेता है अपने मुंह में, ऑयस्टर. बेटा उसको कितना समंदर का वेव्स का मार लगता है ना, बट व्हेन इट ओपन अप ना, वो एक पर्ल लेके बाहर निकलता है. एक पर्ल यानी सच्चा मोती उसके मुंह से निकलता है, ऑयस्टर से. बेटा लाइफ में दुख आएगा ना, तो उसको अच्छा सच्चा मोती बनाओ, पर्ल बनाओ, है ना. सैंड मिला तुमको, भगवान ने सैंड दिया है, रेती दिया है, उसका सच्चा मोती बनाना है आपको बेटा. और आपने देखा है कि आपके आसमान पे इन्यूमरेबल स्टार्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे स्टार्स होते हैं. लेकिन लाइफ में से जब चंदा निकल जाता है, मून निकल जाता है, तब यही स्टार्स आपके जीवन को चमकाता है. आपका बड़ा सुख निकल गया, लेकिन छोटी छोटी जो मेमोरीज है, हैप्पी डेज है, हैप्पी मोमेंट्स है आपके लाइफ के, इट विल ब्राइटन योर इनफाइनाइट लाइफ. बेटा लाइफ में क्लाउड्स दुख के आते जाते हैं. ये क्लाउड भी आपको, नेचुरल क्लाउड है ना, वो भी आपको सिखाते हैं. क्लाउड टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट. जैसे जैसे टाइम जाता है, वो क्लाउड्स के शेप भी बदलते हैं. सो यू शुड बी फ्रेजाइल, नो डाउट, यू शुड बी डेलिकेट इन योर बिहेवियर. डोंट बी रूड, है ना, रूड नहीं होना है. लेकिन एक बात यहाँ पे सीखनी है आपको. क्या सीखनी है?
क्या सीखनी है? दैट यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद द टाइम. झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी पोलाइट एंड यू शुड बी फ्लेक्सिबल. बेटा विंड होता है ना, फ्लो ऑफ विंड, वो पूरा शेप चेंज कर देता है क्लाउड्स के. एंड क्लाउड्स रेडी भी हो जाते हैं, मना नहीं करते कि हम शेप चेंज नहीं करेंगे. बेटा और एक है आपके आसपास में, देखो अभी तो बड़ा सा तूफान आ रहा था. ये जो विंड है ना, द विंड मेक्स द ट्रीज डांस विथ अनहाइंडर्ड पेशेंट. अनहाइंडर्ड दैट मीन्स विदाउट डिस्टर्बेंस. आपने देखा रहेगा जो झुक गया ना वो जी गया, और जो अकड़ता रहा वो समझ लो कि गया लाइफ से. सो द विंड मेक्स द ट्रीज डांस विद द अनहाइंडर्ड पेशेंट. ये जो विंड है वो हवा के साथ जहाँ पे हवाएं चलती है वहाँ झुक जाता है, और उसके अनुसार, उसके रेफरेंस में वो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में मुड़ता है. जो मुड़ता नहीं वो टूट के गिर जाता है. वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो. ये पानी के 3 स्टेजेस है. देखो स्टेजेस ऑफ वाटर. उसको बेटा फ्रीज में रख दिया तो इट विल टर्न इनटू आइस. इसको बॉईल किया तो उसका वाटर वेपर हो जाएगा. उसको कोल्ड किया, देखा आपने 3 स्टेजेस हैं. बेटा ये वाटर को जरा भी ईगो नहीं है, जरा भी ईगो नहीं है. वो नहीं बोलता नो मैं नहीं चेंज होऊंगा, ऐसा नहीं बोलता है. वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स और द कमांड ऑफ द सन एंड द विंड. सन एंड विंड उसको जैसा कमांड करेंगे, जैसा उसको डिक्टेट करेंगे, वैसा वो फॉलो करता है. मीन्स आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, रिस्पेक्टिव मेंबर्स है ना ऑफ द सोसाइटी, जो भी आपको कमांड्स करते हैं, डिक्टेट करते हैं, आपको उसके अनुसार आपको टर्न होना है. सो आपके लाइफ का मज़ा आ जाएगा. सो वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड. व्हेन वी सी अ कैटरपिलर, हम एक कैटरपिलर को देखते हैं. देखो when we see a caterpillar it turn into a butterfly. होता है कि नहीं? देखो कैटरपिलर का एग में से कैटरपिलर, देन पुपा, देन बटरफ्लाई, टर्न होता है उसका लाइफ. होता है कि नहीं? बेटा हम लोग को पता चलता है इतना छोटा एग में से कैटरपिलर कैसे बनता है, कैसे पुपा एंड बटरफ्लाई बनता है. और बटरफ्लाई के कलर्स तो देखो. Wow, this is what I can say, the alchemy of nature. Alchemy, that is mysterious power or the magic that can change the things. है ना बेटा? देखो सॉइल वही होता है, लेकिन वीट गोल्डन कलर का होता है और उसी सॉइल में से निकलने वाला राइस वाइट कलर का होता है. दिस इज व्हाट अ ब्यूटी इज. एक ही सॉइल में 2 पौधे लगाए, हिबिस्कस भी लगाया, एक येलो हिबिस्कस लगाया, एक रेड हिबिस्कस लगाया, देखो कैसा निकलता है वही सॉइल में से. दिस इज व्हाट आई कैन से, that is a beauty, that is the alchemy of nature. We touch it and we become gold ourselves. ये ऐसा alchemy है बेटा. एक्चुअली alchemy है ना, ये ancient forerunner of chemistry है, forerunner of chemistry है. You can say about attempts to convert the base metals into a gold. ये बेस मेटल को गोल्ड में टर्न करता था, जिसको भी टच करते थे वो गोल्ड टर्न हो जाता था. लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है. हियर इट रिफर्स टू अ मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द थिंग्स. सो वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्स. ऐसे नेचर को टच करो, उसकी मज़े लो लाइफ का, और देखो आपकी लाइफ गुड मेमोरीज, बेस्ट मेमोरीज से भर जाएगी. अल्केमी ऑफ नेचर. Alchemy, an ancient forerunner of chemistry about the attempts convert base metals into gold. Second one, instinctively, that means by a natural instinct, enhancing, enriching. Have great wonder and amazement. Wilting, drying and dropping, सूख जाना गिर जाना, wither, dries and dry. Splendor, having and showing impressive beauty, भव्यता जिसको बोलते हैं. Persist, that means if we go through. Colossal, huge and massive. Chapter was over, that means dead. वो जो पत्ता गिर जाता है when the tree shed their leaves ना, हमको लग रहा है कि its chapter was over, that means the पौधा मर गया. Conviction, that means strong belief, firm belief. Lugging, that is pulling with great
डिफिकल्टी, उसको खींचना, घसीटना. फ्रेल fillers, weak legs. Perseverance, that is constant effort in spite of obstacles. Consistent, always steady, continuous. Unhindered, without disturbance. These are all the difficult words. अभी देखो एक ये सेंटेंस लिया, एक वर्ड लिया अल्केमी, एन एंशिएंट फॉरेनर ऑफ केमिस्ट्री, अबाउट द अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड, है ना. अभी उसको सेंटेंस में यूज़ करने का भी आता है एग्जाम में फॉर 1 मार्क. लाइक एस्ट्रोलॉजी, नॉलेज ऑफ अल्केमी फिल्टर्ड इनटू द मिडिवल यूरोप थ्रू Moorish centers of learning in Spain. Second word is enhancing, that is enriching. Sentence, his refusal does nothing to enhance his reputation. Awe, that is great wonder and amazement. They gazes in awe at the small mountain of the diamond. Splendor, you can say having and showing impressive beauty. We are amazed to see the splendor of Ayodhya. अयोध्या की भव्यता देख के हमें सरप्राइज हुआ. Persist, that means go through. The reporter persisted with his questioning. Colossal, huge or massive. You must think twice. That is think है वो वहाँ पे. You must think twice. I am a colossal liar. Conviction, that is strong belief. She had a previous conviction for a similar offense. Lugging, pulling with great difficulty. She began to lug her suitcase down the stairs. Perseverance, that is constant effort in spite of obstacles. His perseverance with technique illustrates his single-mindedness. Consistent, that means steady. Manufacturing process require a consistent approach. Unhindered, that means without disturbance. As an entrepreneur, of course, I see all this as an opportunity, not an obstacle to unhindered operation of the free market. Various aspects of nature have special features that make them different from one another. देखेंगे बेटा बर्ड्स है ना, बर्ड्स के कैसे कैसे फीचर्स है, शेप है, कलर है, फूड हैबिट है. सारे बर्ड के शेप अलग अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं, खाने का उसका फूड हैबिट अलग अलग होता है. लैंड में सॉइल, साइज एंड फर्टिलिटी, वाटर का टेस्ट अलग होता है, कलर अलग होता है, प्योरिटी अलग होता है. ट्रीज, शेप, स्ट्रेंथ एंड वेदर. देन एनिमल्स, उसके फूड. देन हैबिटेट एंड अपीयरेंस. इंसेक्ट, कलर, शेप एंड ब्रीडिंग हैबिट अलग अलग होता है. सो व्हाट थिंग्स इन नेचर टीचेस अस, है ना, क्या क्या सिखाता है. देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. कौन सिखाता है? स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास सिखा देता है. प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट. कौन सिखाता है? वो सूखा पेड़, बेयर ट्री सिखा देता है. बी हम्बल एंड एडजस्ट, वो हम्बल बन जाओ, पोलाइट बन जाओ, एडजस्ट करो लाइफ में. कौन सिखाता है? वाटर सिखाता है. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, टाइम को मज़े लो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो एंड गो अहेड. कौन सिखाता है? हिबिस्कस प्लांट सिखाता है. बी परसिस्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, ये फ्लोइंग वाटर सिखाता है. Many hands make work light, ये आर्मी ऑफ हैंड. एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, वो स्पाइडर वेब सिखाता है. बेटा द राइटर एक्सप्लेन्स द contrasting features of water and rock in this lesson. Write all the features of both water and rock in the given table. Table में पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 5th and now I am reading question number 6. The writer has very positively described the different things in the nature. Discuss with your friend, है ना, discuss with your partner the special features of each one of them and add on the list. देखेंगे पहला water. Water कैसा है? Water is gentle, on the other hand rock is hard. Water cows, sculpts and shapes the rock.
On the other hand, rock is carved, sculpted and shaped by the water. Water persisted, but the rock gives in. वाटर जो है वो जिद करता है और आखिर में रॉक जो है वो छोड़ देता है. वाटर हैज़ अ कमांडिंग नेचर एंड द रॉक हैज़ यील्डिंग नेचर. सेकेंड है बेटा पार्ट ऑफ नेचर, स्पेशल फीचर्स एंड वैल्यू लर्न. रेनबो, रेनबो क्या सिखाता है? कलर्स द एंटायर लाइफ, ब्यूटिफाई द एंटायर स्काई. एंड विच वैल्यू you learn from this? That we should also spread happiness all around us. कैटरपिलर क्या सिखाता है? कैटरपिलर का क्या फीचर है? टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई. हमको क्या सीखने को मिलता है? कीप मूविंग अहेड, कीप मूविंग अवर सेल्स. फ्लावर का भी वैसा ही है. फ्लोइंग वाटर चेंजेस द शेप ऑफ द रॉक. इफ वी कैन परसिवरेंस वी कैन ओवरकम अवर प्रॉब्लम्स. एंड्स क्या सिखाता है? हैव एक्सेलेंट टीम वर्क. We should be organized, we should be focused. Spider web, though it is delicate but strong enough. We should be enthusiastic and focused on the work. Hibiscus plant क्या सिखाता है? Lives short life to its fullest. कम जिंदगी का लाइफ है लेकिन वो मज़े लेके जीता है. We should live our life with splendor even if it is short. सम असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन इज देयर. आपको इसके आंसर इन शॉर्ट में लिखने हैं. व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स डिड द ऑथर फाइंड ऑन द बीच. सेकेंड, व्हाट स्माइल्स द सन एंड द व्हाट स्माइल्स विद द सन एंड डांस विद द विंड. थर्ड, इन व्हाट कंडीशन वॉज द ट्री इन कोल्ड विंटर मंथ. कोल्ड विंटर मंथ में ट्री का कंडीशन क्या है. Next one, what do we find in the infinite sky? How does nature help us doing outdoor activities? What do we learn from small bits of grass? What is the fate of big, bright and tender flower? What is the fate? उसका क्या नसीब है big, bright and tender flower का? Do difficult phases stay in life? लाइफ में डिफ़िकल्ट फेजेस रहते क्या कायम? हाउ डू वी नो दिस? दैट मीन्स यू हैव टू पुट द एग्जाम्पल हियर. वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ फ्लावर? एंड लास्ट वन, हाउ डू यू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट यू कम अक्रॉस? नेक्स्ट असाइनमेंट इज एड अ प्रीफिक्स टू मेक द अपोजिट. कंटिन्यू, अंडरस्टैंड, रेगुलर एंड प्लीजेंट. मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेजेस. In full splendor, impressive and patient. Complete the word chain of nouns. Pavement, आगे T से continue करना है. Use not only but also in the following sentence. Outdoor activities enhance and relax our well-being. Second one, nature whispers and commands. Identify the tense given below. We saw an army of ants. We experienced the alchemy of nature. It will not remain so forever. Ants were lugging a fly. Now one paragraph I have given you. Read the following passage and answer the questions that given below. A. State whether the following statements are true or false. If things look impossible, there is no opening. Second, spider webs are delicate yet very strong. पैराग्राफ बेटा पेज नंबर 39 पे है. वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास डॉट 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 बिकम गोल्ड. दैट मीन्स अप टू एंड पूरा लेना है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड ओपन अप विथ अ डैश. एंड 4 ऑप्शंस आर देयर. गोल्ड, डायमंड, पर्ल एंड स्टोन. सेकेंड करेक्ट अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन. स्पाइडर वेब्स आर डैश येट वेरी डैश. Strong, delicate, weak, delicate, delicate, strong, weak, strong. Now pick out 2 examples of words with the prefixes from the passage. Then second exercise, pick out the words from the passage that are synonyms of. Firm belief, delicate. And A for do as directed. The first one, spring set in, that means started, and the trees was back to its green majesty once again. Rewrite using no sooner dot 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 then.
We touch it and become gold ourselves. Rewrite using a subordinator. Next one, personal response question. What is required to tackle trials and tribulation in the life? Explain. So this is for 10 marks. वाह, एलिमेंट ऑफ नेचर, हमने आज क्या क्या एलिमेंट्स देखा है? द फर्स्ट वन हिबिस्कस प्लांट देखा है. सेकेंड वन हमने क्या देखा बेटा? ये क्या है बेटा? वाटर वेव्स और ओशन वेव्स. फिर हमने देखा बेटा वो टेंडर बिट ऑफ ग्रास, ये हवा के साथ में मुड़ने वाला एक बेयर ट्री. फिर हमने आर्मी ऑफ एंट देखा. नेक्स्ट स्पाइडर वेब देखा, ऊपर से डेलिकेट रख रहा है लेकिन अंदर से कैसा बेटा? येट स्ट्रॉन्ग विद इन. फिर रेनबो देखा एंड लास्ट हमने क्लाउड्स देखे. सो लव योर नेचर, है ना, मदर नेचर. लव एवरी क्रीचर एंड शाइन योर फ्यूचर. बिहेव लाइक मैच्योर. दिस इज द मैसेज आई वॉन्ट टू कन्वे यू एंड this is a song for you. हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन. दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी. ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां. ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां. ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के. गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के. ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो. इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो. चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की. कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की. अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है. ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन? So thank you for watching my channel and I hope you all will enjoy my video on the topic alchemy of nature. And this is a very best, you can say, lesson for your exam point of view, because for objective question and for all
type of grammar you can find in this topic. So, hats off to Raksha Bharadia, the writer of this article, and what William Blake here giving a message to us that if you want to see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, the only thing you can do that hold the infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So once again, a warm thank you to all my friends.